Question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one dish is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number, second, a perfect square number, and third, a number divisible by 5. So we have to find different probabilities. So let's start. First of all, let's see question में given क्या है. हमारे पास 90 डिस्क्स हैं जिनके ऊपर नंबरिंग की है 1 to 90. लाइक फर्स्ट इज़ 1, सेकेंड 2, 3 and so on, and last one is having 90 number written on it. So there are 90 discs at all. So if one disc is drawn at random, so box में से अगर randomly one disc हम पिक करते हैं, so find the probability first that a two digit number appears. So first probability हमें find out करनी है जिसमें कि two digit number हमें मिलने के chances find out करने हैं. So first of all नंबरिंग है 1 to 90 एंड टोटल जो नंबर्स हुए वो भी 90 हुए. सो फर्स्ट टू डिजिट नंबर के लिए हमें पूछा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी 90 में से 1 to 9 नंबर्स वन डिजिट नंबर होते हैं. 1 to 9 वन डिजिट नंबर हुए. टोटल ये 9 हो गए वन डिजिट नंबर, वन डिजिट. देन 10 to 90 टू डिजिट नंबर हैं, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर्स हैं. सो टोटल 81 नंबर्स आर टू डिजिट नंबर्स. Total 81 numbers are two digit numbers. So let's find the probability of first part. So in first part favorable outcomes हमें जो two digit number की है that is 81 because total two digit numbers from 1 to 90 are equal to 81. Therefore probability of getting a two digit number will be equal to number of favorable outcomes upon total outcomes. So number of favorable outcomes upon total outcomes. Then favorable outcomes 81 है and total outcomes because total numbers 90 है, so it is 81 upon 90. so इसको अगर हम कट करते हैं 9 9 ज़ा 81 and 9 10 ज़ा 90, so answer is 9 by 10. so this is the probability of getting a two digit number. Now let's start second part. in second part हमें find out करना है probability of getting a perfect square number. 1 से लेकर 90 तक नंबर्स हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड 1 से लेकर जो 90 नंबर्स हैं उनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने आते हैं. सो 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर दैट इज़ 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 49 and 7 8 64 and then 9 81. so total numbers are 2 4 6 8 and 9. so total numbers which are perfect square numbers are 9. so first of all total perfect square numbers perfect square numbers from 1 to 90 are 1 4 9 16 25 36 49 64 and 81. so we can say total numbers are 9. so probability of getting a perfect square number when disk is taken out randomly will be equal to number of favorable outcomes. number of favorable numbers हमारे पास होंगे 9 because 9 numbers हैं total perfect square numbers and total is
90. So 9 by 90, this is equal to 1 by 10. So required probability of a perfect square number will be equal to 1 by 10. Now third part में we are required a number divisible by 5. So 1 to 90 numbers में से if randomly कोई डिस्क हम बाहर निकालते हैं, what is the probability that number on the disk is divisible by 5? That is, we are talking about multiple of 5. सो 5 के मल्टीपल मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 5 के मल्टीपल्स 1 टू 90 कितने हैं? मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं हमें 1 टू 90. सो लेट्स सी मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 90 are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 85, and then 90. 90 is the last number. So total numbers which are multiple of 5 are 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Total numbers which are multiple of 5 are 18. So the probability of getting a number divisible by 5 will be equal to probability of getting the required number is number of favorable is 18 and total numbers are 90. So 18 upon 90 is the required probability. इसको अगर हम कट करते हैं 18 5 से 90 होता है, then it gives us 1 by 5. So this is the solution for third part. Question 19 is a child has a dice whose 6 faces show the letters as given below: A, B, C, D, E, A. So 6 faces of a dice show these numbers at the faces. We have to find the probabilities of getting A as the outcome and second D as the outcome. So let's see A, B, C एंड जो इसके बैक साइड फेसेस हैं उनके ऊपर डी ई एंड ए है एट द अदर अपोजिट फेसेस. सो ये सेम डाइस है बट बैक साइड का यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड सेकेंड डी. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इन फर्स्ट पार्ट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं. नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन सी. वी हैव 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं. टोटल आउटकम्स 6 हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है. सो हाउ मेनी एज आर देयर? दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो देर आर 2 एज. नंबर ऑफ favorable outcomes is equal to 2. Therefore probability of getting A. So probability of getting A will be equal to number of favorable outcomes is 2 and total outcomes is 6. So this is equal to 1 by 3. So 1 by 3 is the required probability for the given dice. Now second part. In second part we have to find the probability of D, getting D. So there, as we can see, there is only one D. एक ही D है total outcomes में. So required probability of this is very simple. Probability of getting D as the outcome will be equal to number of favorable outcomes. So favorable outcomes हमें एक ही है. This is favorable.
So 1 is the favorable outcome, 1D is there, and total outcomes is 6. So probability of getting D as the outcome is 1 by 6. So this is the solution for second part. Question 20 is, suppose you drop a die at random on a rectangular region given in figure. What is the probability that it will land inside the circle with a diameter 1 meter? सो हमें एक रेक्टेंगुलर रीज़न दिया है, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर रीज़न, और एक डाइस है हमारे पास. सो ही सेइंग कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेक्टेंगुलर रीज़न के अंदर जो सर्कुलर रीज़न है, सो गिवन डाइस उसके अंदर फॉल करे. सर्कुलर रीज़न के अंदर फॉल करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. इसके डायमेंशन, रेक्टेंगुलर डायमेंशंस हमें गिवन है, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रीज़न इज़ ऑल्सो गिवन. सो टोटल हमें एक रेक्टेंगुलर रीज़न बिगर वन दिया है, उसके अंदर एक सर्कुलर रीज़न है स्मॉलर वन. हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट डाइज फॉल इन दिस सर्कुलर रीज़न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना है. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टार्ट विद फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीज़न. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. सो दिस इज 3/2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन. टोटल जो एरिया है वो इतना हमें आ गया. नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन. सो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इट इज़ इक्वल टू, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. पाई आर स्क्वायर एज डायमीटर इज़ 1 मीटर्स, एंड डायमीटर का जो हाफ होता है दैट इज़ d/2 इज़ इक्वल टू रेडियस. सो यहाँ से हम 1/2 लिख सकते हैं फॉर द रेडियस. पाई आर स्क्वायर दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू π/4. सो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज़ π/4 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज़ 6 मीटर स्क्वायर. हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो डाइस है वो सर्कुलर रीजन में फॉल करे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना. सो दिस इज़ द सर्कुलर रीजन. गिवन डाइस इसके अंदर फॉल करने के लिए कितने चांसेस हैं वो फाइंड आउट करना है. सो डेफिनेटली जितना सर्कुलर रीजन है ये फेवरेबल एरिया आ जाता है, एंड टोटल एरिया जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो टोटल आपके पास एरिया आ जाता है. सो इसमें फॉल करने की प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल एरिया सर्कुलर एंड टोटल एरिया इज रेक्टेंगुलर. सो लेट्स सी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज PE, that is equal to area of circular region, area of circular region, area of circular region upon area of rectangle, area of rectangle. So this will be equal to area of circular region is π/4 and total area is 6 meter square. So it will be equal to π/4 into 1/6, that is required probability हमें मिलेगी, that is PE equal to π/24. So π/24 is the required probability of a dice falling in the circular region. So this was the solution for question number 20. Question 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. So shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, and second, she will not buy it? So नूरी पेन को बाई करना चाहती है, एंड शॉपकीपर के पास जो टोटल पेन्स हैं वो 144 हैं, और 144 पेन्स में से 20 डिफेक्टिव पीसेस हैं. टोटल पेन्स 144 हैं, 20 डिफेक्टिव पेन्स हैं 144 में से, और कंडीशन इज़ दैट नूरी एक पेन बाई करेगी अगर वो पेन निकालता है बॉक्स में से और वो एक गुड पेन है, अदरवाइज शी विल नॉट बाई अ पेन. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कितने चांसेस हैं कि वो बाई करेगी
और कितने चांसेस हैं कि वो बाय नहीं करेगी. सो लेट्स स्टार्ट. टोटल नंबर ऑफ पेन्स. Total number of pens is 144. Number of defective pens is 20. Therefore, number of good pens माइनस कर लेंगे. 144 गुड पेन्स हैं, 20 डिफेक्टिव पेन्स हैं. सो वी आर लेफ्ट विद 124 एज गुड पेन्स. सो 124 गुड पेन्स हैं. सो जब भी बॉक्स में से एक पेन रेंडमली ड्रॉ किया जाता है तो अगर वो गुड पेन आता है तो नूरी उसको बाई करेगी, अदरवाइज नहीं बाई करेगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ good या working pen, getting good pen will be equal to, this will be equal to number of favorable cases. और good pens जो हैं वो favorable cases में आएगा. good pen 124 है, 124 good pens हैं and total pens हमारे पास 144 हैं. गुड पेन्स 124 एंड टोटल पेन्स 144. सो इसको अगर हम कट करते हैं सो वी गेट आंसर इक्वल टू 31/36. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट नूरी विल नॉट बाई अ पेन. सो प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल नॉट बाई पेन. अगर ख़राब पेन निकलता है देन वो बाई नहीं करेगी. सो उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी एज वी नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस अ पेन, ये नॉट अकरेंस प्लस अकरेंस इज इक्वल टू 1 होता है. सो यहाँ से हम कोई भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज़ दिस वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ PE नॉट फाइंड आउट करना है. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन इज 1 माइनस 31/36. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं दिस इज 36 माइनस 31/36 एंड वी गेट 1/5 एज द